Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a very good afternoon for us. Uh, Maddock has been built with small town stories, middle class stories. And there was this whole theory going out like that the audience doesn't want to watch films like this. So, films like Hindi medium, Bala, Luka Chupi would not be as relevant in theaters. So, I'm just personally very, very grateful because we can make films like this thanks to y'all. And a big shout out to all of y'all because you've taken this really beautiful middle class couple, Soumya and couple, and made the audience feel connected to them. And that's why we've done so well. So I thought the best thing is to celebrate the film with you. But who I'd like to speak about today is Lakshman Uttekar. How do I start? So his reference of his stories is life, not films. And I think he's on a hat trick. This is his third hit, which is fantastic. And he is as simple and more connected to India than most people in Bombay. And I just feel I want to thank him because this is his third film with us, his third hit film with us. And I just want to tell him that I'm really grateful he's part of our family. And he's given this really special film. My entire family, I used to live with 25 people. I saw the film with all of them. And it was amazing. It kind of reminds each one of them of moments you've had. And that moments he's built. So everything you see in his film is somewhere from a window in his life. And he's like one of us in the life he's lived. So thank you very much, Lakshman. Thank you, Vicky. Like I told you, Vicky is I always tell him he's one of the best actors I've worked with. We all know that. But he's an amazing human being and he's a team player. And I think he looks at every scene like it's important. He's not trying to be the best. He's trying to make the scene the best. And there are very few actors like you who do that. So thank you, Vicky. And this is our first with you. My little godchild, Sara. We all know, like in her Darshako style, she's quite funny. But I feel so proud that so many people have called and told me that you have such great comic timing. And also the fact that you can be quite a strict wife. So thank you very much. And it's, I've had a beautiful journey with your father, and we've done some really good films together. And I'm very, very happy that the legacy continues. So thank you. I want to give a big shout out to my entire Maddock team. There's Sharda and Pooja, who've actually made this film. She found the story, and Pooja ran the film. And she's been with me for 20 years. She's been with me from college. And this victory is as much hers as mine. I'd like to thank my marketing team, Nikita, Sonali, Priyanka. The way they've positioned this film and made it our story, kudos to them. And, they want to thank the photographers because y'all have put such beautiful pictures of Soumya and couple that people have wanted to watch the film. And thank you very much for that. Who else am I forgetting? Sachin, Jigar and Amitabh, without which this album would not be what it is. If you have music like that, to aur kya chahiye? And the entire crew. I have never thanked so many people in my life, but I'm just very, very grateful that Maddock can continue and make stories like this. So eternally grateful and thank you very much. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आप लोग यहाँ पे आए और हमें इतना प्यार दिया, तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं इस फिल्म को बहुत ही अच्छी नज़र से देखा है, ज़रा हट के देखा है, और तो वो दिख रहा है सब जगह पे.
Thank you to Vicky and Sara for actually putting soul in Soumya and Kapil. मतलब उनको जिंदा किया आपने स्क्रीन पे और वो दिख रहा है आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, आप दोनों की जो स्माइल है एक दूसरे के लिए या गुस्सा एक दूसरे के लिए, वैसे लगता है कि मिडिल क्लास के हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, और वही वजह है कि इस फिल्म पे सब लोग बिलीव कर रहे हैं। बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा दीनू सर को एक्चुअली, क्योंकि 15 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था कि सर कॉपी रेडी हो जाएगी। मैंने कहा हो जाएगी। कितने दिन में? मैंने कहा 10 दिन में। 8 दिन में हो जाएगी? मैंने कहा वो भी हो जाएगा। एंड 15 दिन में फिल्म को रिलीज़ करना, मतलब क्या था मुझे समझ में नहीं आया। फिल्म अच्छी बना सकते हैं, मैं बना लेता हूँ वैसे बट उस अच्छी फिल्म को उसका जो ऑडियंस है उन तक अच्छे से पहुंचाना एक टास्क है, जहाँ पे एंटायर इंडस्ट्री सोच रही थी अरे कौन सा 15 दिन में क्या होगा, अरे वो तो डेट मिल गई इसलिए कर दिया, अरे ऐसा कौन सा होता है, ऐसा कौन सा होता है। सबके मुँह चुप हो गए। एंड सीरियसली थैंक यू सर फॉर दिस, बिकॉज आपने थिएटर्स के दरवाजे खुले कर दिए ऑडियंस के लिए। जहाँ पर लोग समझते थे कि सिर्फ बड़ा कैनवास चलेगा, ग्रैंड फिल्म चलेगी, वहाँ पे अच्छा कंटेंट भी थिएटर में चल सकता है, ये आपने प्रूव कर दिया। एंड सीरियसली इट्स अ बिग चेंज इन द इंडस्ट्री। मतलब आज भी सारे चुप है क्योंकि किसी को पता नहीं हो क्या रहा है। बोल रहे हैं 1 पे 1 फ्री दिया इसलिए चल रहे। अरे भाई अगर सड़े हुए टमाटे आप बेचो और बोलो 1 किलो पे आधा किलो फ्री है, कुत्ता लेगा क्या? नो सीरियसली नहीं लेगा। जब माल अच्छा हो तो फ्री नहीं भी दोगे तो भी लोग लेंगे, है ना। अच्छा पानी पीने के लिए लोग कुएं के पास आते हैं, लेकिन पानी में गंध हो तो कौन पिएगा? तो हमने फिल्म अच्छी बनाई, और जिस तरह से दिनू सर ने इस फिल्म के लिए दरवाजे ओपन किए, जिस दौर में हम लोग चल रहे थे, जो थिएटर्स की हालत थी, उस हालत को उन्होंने चेंज कर दिया। एंड सीरियसली सर, एक अच्छी फिल्म बनाना अलग बात है, बट एज अ प्रोड्यूसर उस अच्छी फिल्म को उसका जो हकदार ऑडियंस है उनके तक पहुंचाना अलग बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। नोबडी एल्स कैन डू इट इन द इंडस्ट्री, सीरियसली। एंड एंटायर मार्केटिंग टीम, शारदा, एवरीवन, मतलब 15 दिन डे नाइट आप लोगों ने जो काम किया है। मुझे तो कोई पोस्ट भेजता था तो मैं इंस्टा पे डालता नहीं था, इतना लेजी हूँ। वो सोनाली पीछे पड़ती थी, पोस्ट नहीं डाला, मैं डाल दूंगा। लेकिन आप लोग का डे नाइट के जो एफर्ट्स है, और सौम्या, कपिल, आप लोग जहाँ जाके पानी पूरी क्या खा रहे थे भाई साहब, कमाल। मतलब सीरियसली सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, बट थैंक यू। दीनू सर का फ़ोन जब मुझे आया था तो मैं केदारनाथ में थी अपने दोस्तों के साथ और छुट्टी मना रही थी, और तब उन्होंने मुझे कहा कि कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी पिक्चर में बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ। और मुझे सच में ऐसे लगा कि मेरी डेब्यू फिर से होने वाली है, क्योंकि इतने सालों बाद बड़े पर्दे पर अपने आप को देखना, ऐसा लगा कि जेन्युइनली एक सपना जैसा हो गया था। मैं बहुत बार पैंडेमिक के दौरान, पैंडेमिक के बाद सोचती भी थी क्या वो दिन वापस आएगा जब मैं बड़े पर्दे पर अपने आप को देखूंगी। इंट्रोड्यूसिंग सारा अली खान तो याद है, लेकिन स्टारिंग सारा अली खान, फीचरिंग सारा, ये क्या मतलब, वाज आई इमेजिनिंग इट, और विल इट एवर रियली हैपन अगेन? और आई रियली बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन पॉजिटिविटी। और इतनी अजीब बात है, मेरी पहली फिल्म केदारनाथ थी, मैं केदारनाथ में थी और दीनू सर का फ़ोन आया मुझे कि ये फिल्म मैं बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट so thankful, so grateful to him for giving me this. Honestly, I think it's a debut again because it's been half a decade almost. I shouldn't age myself like this. Anyway, it's been a while, and really thank you very, very much, sir. Thank you so much. Thank you to the media, thank you to the audiences for accepting what we've given you. Thank you so much, Lakshman sir, for giving me Soumya. Thank you so much for making me understand where she comes from. Thank you so much for fighting with me for wearing bindis, because you are right, I look better when I wear the bindi that I didn't want to wear. Thank you for just everything. Really, truly thank you. And thank you, Kapil, for making Soumya come to life. And thank you, Vicky, for calming Sara down.
You have just been the most superb partner in this entire journey. I think that it's been just outstanding to be with you, to work with you. And I don't want to talk about how talented you are because everybody knows that. But you are so humble, so gracious, and so giving. फ्रॉम नहीं सच में यार मतलब सही बोल रही हूँ यार तेरी कॉफ़ी से लेकर तेरे एक्टिंग तक सब शेयर करते हो विच इज़ आई थिंक ग्रेट सो थैंक यू वेरी वेरी मच एंड अगेन थैंक यू टू द मार्केटिंग टीम थैंक यू टू एवरीवन बट मेनली एंड मोस्टली थैंक यू टू द ऑडियंसेस थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर फिल्म मैं तो कभी नहीं मानती थी कि सिर्फ बड़ी फिल्में चलती हैं मुझे हमेशा से यही लगा था कि सच्ची फिल्में चलती हैं तो थैंक यू कि आप लोगों ने हम लोगों में अपने आप के अंदर जो विश्वास है वो वापस जगाया उसके लिए बस थैंक यू वेरी मच यार ये 3 लंबे लंबे स्पीचेस के बाद मुझे बड़ा प्रेशर फील हो रहा है कि मुझे कुछ बहुत डीप कुछ बोलना है पर सच में बस हमारा यहाँ पे आज ये आपसे मिलने का और आपके ज़रिए लोगों से मिलने का इंटेंशन यही था कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्म की जर्नी जो ऑडियंस के साथ शुरू हुई थी वो इसी जगह पे शुरू हुई थी जहाँ पे हमने ट्रेलर दिखाया था और तब भी आप शामिल थे और आज जब वी आर स्टैंडिंग हियर और यहाँ कन्फेटियाँ फट रही हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं आज के टाइम पे कि एक पिक्चर सिनेमा घर में चली है और एक ऐसी पिक्चर सिनेमा घर में चली है जो जब ट्रेलर आया था तो लोग कह रहे थे अरे ये तो प्राइम एग्जाम्पल है ये तो OTT पे आनी चाहिए थी तो वो अब सिनेमा घर में चल रही है तो उसका हम थैंक यू करने के लिए आज यहाँ साथ में आए हैं तो मुझे बस लग रहा है कि इसमें हमसे ज़्यादा ऑडियंस की जीत हुई है और ऑडियंस हैज़ ट्रूली शोन दैट उनका पावर उन्हीं का पावर है एंड यू नो लाइक आई थिंक amongst all of us the most confident was Lakshman sir always because he kept saying sir मुझे कुछ टेंशन नहीं है मुझे पता है ये लोगों तक फिल्म कहानी पहुंचेगी पिक्चर कितनी चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं पता पर कनेक्ट जरूर करेगा कोई ये नहीं बोलेगा कि यार मैंने कनेक्ट नहीं किया सो थैंक यू सर उस कॉन्फिडेंस के लिए और मुझे अभी भी याद है जब सर ने फ़ोन किया था और हमें फिल्म नरेट की थी दैट वाज राइट आफ्टर द सेकेंड फेज ऑफ कोविड जहाँ पे बहुत सारा तनाव था और बॉलीवुड का क्या हो रहा है कौन सी फिल्में आ रही है नहीं आ रही हैं किसी को कुछ पता नहीं था और उस बीच ये कहानी आई थी जो दिल से लगा था कि हाँ यार ये कहानी हमने जी है और इस देश में जो भी ये कहानी देखेगा वो कनेक्ट ज़रूर करेगा और उसके बीच में क्या है कि बहुत सारा माइंड प्ले होता है कि अच्छा यार ये हो गया अब ये फिल्म आ गई वैसी चल रही और ऐसी नहीं चल रही ऐसी चल रही और वैसी नहीं चल रही वो सब के बीच में हम कहीं ना वो भूल गए थे कि जब हमने शुरुआत की थी तो ये सोच के की थी कि यार ये कनेक्ट ज़रूर करेगी और वो पिछले 5 दिनों में ना हमने वो वापस फील किया कि हाँ यार ये हम पहली मीटिंग में बोल रहे थे कि यार कनेक्ट ज़रूर करेगी और वो जब आज कनेक्ट कर रही है वो हमारे लिए ये नंबर से भी ऊपर की बात है तो आज सिर्फ हम थैंक यू बोलने आए हैं आप सबका और जेन्युइनली थ्रू आवर लवली मीडिया वी रियली गॉट टू इंटरैक्ट विद द होल नेशन थैंक यू सो मच फॉर दैट मुझे पता है कई बार आप लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा है और कई बार मतलब काफ़ी कई बार लेट नाइट्स और सब कुछ बट थैंक यू सो मच सच्चे दिल से हमारी तरफ से और ऐसी आई थिंक यहाँ पे शुरुआत हुई थी पर ये एंड नहीं है ऐसी हमारी जर्नी कंटिन्यू रहे इस फिल्म के साथ और लोग जुड़ते रहें ज़रा हटके ज़रा बचके के साथ सिनेमा घरों में यही हमारी आशा है एंड बट सारा थैंक यू टीम को भी बट ऑल्सो आई वुड ऑल्सो रियली जेन्युइनली मैंने फ़ोन पे तो बहुत बोला है डीनू सर को बट आई वॉन्ट टू say this today on this stage that I am so grateful to him because he had every logical reason to bring this on the OTT platform and he would have been completely correct in everybody's eyes but he took that risk of bringing a film like Zara Hatke Zara Bachke in the cinema halls in today's time and sir दिल से thank you है हमारे इस फिल्म में 10 रुपए नहीं लगे हैं आपके सारे पैसे लगे हैं to take that call एंड जेन्युइनली एंड मुझे पता है कि पिछले जैसे लक्ष्मण सर ने बोला कि जब ये डेट हमें मिली थी और हमने डीनू सर ने डिसाइड किया 2 जून को आना है उसका म्यूजिक कैसे बनेगा पोस्टर ट्रेलर कहाँ कहाँ जाना है कैसे प्रमोट करना है ये सब आवरली बेसिस पे डिसाइड होता था डीनू सर हैज बीन सिटिंग इन हिज ऑफिस टिल 3 AM in the morning with his superb team at Maddock to kind of figure out कि
हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ऐसी भी एक फिल्म आ रही है और प्लीज मौका दीजिए इस फिल्म को. बट थैंक यू मैडॉक, थैंक यू लक्ष्मण सर, थैंक यू डीनू सर एंड थैंक यू सारा. मैं पहली बार काम किया है और मैं आजकल जहां भी जाता हूं मैं नमस्ते दर्शकों बोलता हूं. और 5 दिन प्रमोट करूंगा मैं नॉक नॉक बोलने लग जाऊंगा. but she's one of the most purest souls I've ever interacted with. She is wonderful and ये जैसे लोगों के साथ जुड़ती है, बहुत जेन्युइनली जुड़ती है और वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई पर्दे पर भी दिखती है, चाहे वो सौम्या हो चाहे इसका कोई भी किरदार हो. ये मुझे इतना पता है कि सारा हमेशा मतलब लोगों को पसंद आएगी और वो जुड़ती रहेगी बिकॉज इसकी सच्चाई बहुत बोलती है और इसकी आंखों में बोलती है. अभी जा रही हाँ थी वहाँ पे ये? अबू धाबी गए हैं, पूरी दुनिया कोऑर्डिनेट कर रही है, सारा कहाँ है, सारा कहाँ है, सारा कहाँ है. दीनू सर का मुझे एक वॉइस मेल आया, तब मुझे पता चला कि डेली मिलता है. सारा, there's data roaming just for $3.99. Can you get it? Otherwise, coordinate with someone from my office. That was the message I woke up to. I was like, okay. और ये क्या फिर करती है? विकी बोल रहा है. नहीं नहीं, उसका बेस्ट है हॉटस्पॉट दो ना, हॉटस्पॉट दो ना. इसका पूरे आईफा में यही चल रहा है कि हॉटस्पॉट दो, हॉटस्पॉट दो. I didn't know you get daily, yaar. Now I'll get it next time. But that's a lot for one day. Yeah. Why will I get Yes, it? yes. So, yeah, that's true. Exactly. मेरे 6 दिन फिर नल्ले. That's have- not the way, dude. आई थिंक ये गिफ्ट सारा को जाना चाहिए ना. हाँ देखो कर रही है वो, Yes, करेक्ट. gifts. I like gifts. आई थिंक पैसे it's बचाने की सबसे बेस्ट टेक्निक तो हमने फिल्म में देखी, निंजा टेक्निक की. थम्स अप को 1/2 करवाना चाहिए. आई थिंक उससे एपिक कोई है नहीं. बाकी माय नेक्स्ट वर्स की डेटा पैक बाहर जाके यूज नहीं करना चाहिए. आई थिंक दैट्स अगेन द बेस्ट वे. Fantastic. अच्छा ये और एक हाथ ऊपर आ रहा है. जल्दी से let's give the mic there. हेलो हेलो. ये सभी के लिए है कि व्हेन आई ट्रैवल बाय ट्रेन ना तो मैं रिटर्न टिकट लेता हूँ. तो रिटर्न टिकट आप जाके रिटर्न आ सकते हो, नेक्स्ट डे रिटर्न भी वापस आ करेक्ट सकते हो. करेक्ट करेक्ट. तो वो मैंने किया है. एक ये बहुत सीक्रेट है. तो तो दोनों अगर आज की रिटर्न टिकट ली है वो Yes, कल sir. भी काम आ जाती नहीं है. वो आ 12 जाती है. 12 घंटा चलती नहीं है. नहीं 12 नहीं चलती है, नेक्स्ट डे चलती है अगर आपके टीसी ने टिक नहीं किया हो तो. ये राज है. तो आप- मतलब टीसी से छुप के रहो. नहीं नहीं नॉट टीसी से. नॉर्मली आप जाओ तो नेक्स्ट टाइम का रिटर्न टिकट ले मत. तो आप देर दिन ट्रैवल, एक टिकट में देर दिन ट्रैवल कर सकते हो. क्या बात है. आई थिंक ही विंस. नहीं बट ये बॉम्बे के अंदर. हाँ बॉम्बे के अंदर. पता चला हम दिल्ली पहुंच गए. या ये तो लोकल टीसी थे. से चुप के. थैंक यू. ये तो एकदम सोशल सर्विस And वाला काम किया आपने. सीक्रेट. क्या बात है. Yes, and Dinesh sir's already we've picked the winner there. Congratulations Thank to you, sir. our media member. Okay, अगला वाला बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है. Yes sir, yes sir. विकी, एक मेरा भी है. हाँ जी पाजी. आपने हमको सिखाया कि नूडल्स खाओ और पेप्सी 1/2 करो. हाँ जी, हाँ जी. लेकिन टिप 1 रुपए को देते थे आप. इतने ज्यादा पैसे वो को भी बचाने पिक्चर में ले लिया मैंने. 1 रुपए भी नहीं छोड़ा. 1 रुपए की टिप में 5 रुपए की सौंफ खा लेता था. हाँ, तब होश में नहीं था. दिल टूटा हो तो फिर पैसे पता नहीं लगते कहाँ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं. Okay, next I think हम सब ने किया है, but please honestly हमें बताइएगा होटल से क्या क्या ले सकते हैं और कितना लिया है. होटल स्टेज में I'm sure we all enjoy staying in hotels and going out. सारा लिस्ट खोल तू. मैं लिस्ट नहीं बताऊंगी, एक बार बताऊंगी कि मुझे एक्सेस बैगेज का फंडा पता नहीं था. तो जब हम एयरपोर्ट पे थे एक बार मेरी मम्मी को पता चला that we are 10 kgs overweight. She's like ऐसे कैसे हो सकता है. We'd gone for 1 month. तो 1 महीने में जितने शैम्पू, कंडीशनर, लोशन, but I should have learned not to do that again. अरे ये होटल तो अब फिर मैं भी कब समझने लेती वाली हूँ? बात है. होटल फिर भी समझने वाली बात है. हम प्रमोशन कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, सुबह सुबह की फ्लाइट है, आधे नींद में फलाना. वो पिलो वाली बात नहीं बोल सकते. अब तो आ रही है. अरे लाउंज से तकिया ले गई. एयरपोर्ट से कौन तकिया लेके जाता है. वो वहां पे 10 मिनट सोई, ये तकिया बहुत अच्छा है, ले गई 3 शहर, अब वो तकिया चल रहा है साथ में. ये सवाल पूरा सारा के लिए था. Okay, हमारे मीडिया मेंबर्स हम आपसे भी जानना चाहते हैं. I'm sure कि आप भी ऐसा. Yes. होटल से please. क्या बटा है. Yes, I think हिंदी से अच्छा साउंड कर रहा है. होटल से क्या बटा है. अरे पुलिस नहीं आ रही, टेंशन मत ले. आ गई ना तो तू पहले जाएगी. Yes. एक ही बार लिया था मैंने. वर्कआउट के लिए नैपकिन्स नहीं थे तो जो होटल से ले लिए थे. इसमें भी तेरे को कूल बनना था, वर्कआउट के लिए नैपकिंस. हाँ नहीं कूल नहीं लिया, उसके लिए ही था. वो तो ठीक ही है. हाँ नैपकिन्स लिए थे. वर्कआउट के नैपकिंस तो बनते हैं यार. हाँ बस वही लिया था और कुछ नहीं.
एक ही बार लिया था। Yes, yes, we have this lady also right there जो बताना So for चाहते हैं. me, the Yes, can best- we hand over the mic to her? Can you hear me? Yeah, we can. Okay. The best jugaad for your international luncheon Where? Sorry, is your breakfast buffet. हाँ. So your breakfast buffet with the, the array of cheese, the yogurts, and all the fruits that you get. That's a good jugaad for your lunch and especially your meals, especially when you're traveling. Good For one. international Great, ones. good one, So good one. I used to do that, especially when you're in Europe. So that's a good one. मैम आपको पता है Sharda does यूरोप- it on promotion in Bombay. She takes croissants. Don't lie, Sharda. मैम यूरोप में ना चीज फ्री मिलता है. Exactly. मैं जब And पहली then- बार यूरोप गया था मुझे लगा नमक है क्योंकि नहीं, यहाँ तो but नमक ही आप- फ्री मिलता है. फिर आपने मैंने कहा yogurt चीज try फ्री किया? कौन देता है यार? cheese hai, you've got great array of yogurt, That's flavored true. yogurt, That's true. healthy भी. बुफे जिंदाबाद. जरा ये ना अभी मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ. शारदा ने मैंने उसको ऐसा बोला ना तो वहाँ से बोल रही तीनों को बोलो कोल्ड ड्रिंक का बताए. तो मैं और एक हमारे इंडस्ट्री का एक्टर है वरुण धवन गए थे. तो हम गए एक रेस्टोरेंट में चिकन खाने. तो उन्होंने हमको बॉटमलेस पेप्सी दिया. मतलब कि जितना पीना है पियो. तो हम दोनों खा रहे थे. फिर हमको किसने ज्वाइन किया और किसी और ने ज्वाइन किया. तो मैं उसको बोला तुझे पेप्सी पीनी है. तो उसने बोला हाँ हम लेके आए. ऐसे 4 लोग ने पिया. फिर क्या हुआ उसकी वाइफ आई और बोली आई वांट डाइट पेप्सी. तो मैंने बोला अरे इसमें कुछ गिर गया. तो कैन यू चेंज द ग्लास एंड गिव डाइट पेप्सी. जैसे आप कप्पू की क्या लाइन थी कि हम आज से कुछ बचाते हैं. रोज में से कुछ ना कुछ बचाते हैं कल. कप्पू की मेरी पर फेवरेट लाइन है कि मुझे कपिल से ज्यादा कप्पू पसंद है क्योंकि उसमें 2 मात्राएं बचती हैं. That was Lakshman sir. Okay, yes. Anybody else would like to share? Please. Hi, this is Pooja Kashyap. Hello. So, Hi, ma'am. Hi. So I always carry like yogurts, juices from hotel's room, and also cashews. That's my favorite. Yeah. हाय 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 में जब रूम सर्विस अगर ठीक से नहीं मिलती है तो मेरी वाइफ जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा सोप मंगा के रख लेती है जब रूम सर्विस अच्छी नहीं मिलती है तो. Hi here. Hi. I just want to add on to the person who said about the train ticket. So it's more like अगर आप रिटर्न टिकट खरीदते हो तो नेक्स्ट डे के लिए रिटर्न के लिए चलता है. बट इफ यू बाय द सेम टिकट ऑन सैटरडे इट इज वैलिड टिल द मंडे फॉर द रिटर्न जर्नी. So you get 2 days actually. Sara, you'll save 15 rupees. हाँ? I like it. संडे को सारे मीटिंग्स सैटरडे को टिकट ले लो. आज today we are जुगाड़ प्रो सेंट्रल. Okay, the next one is हमारा टूथपेस्ट खत्म होने की कगार पे जब होता है, whenever it's ending, हम उसे खत्म नहीं होने देते. वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम वो टूथपेस्ट को खत्म नहीं होने देते. लेकिन हम कौन से तरीके से खत्म नहीं होने देते वो जानना चाहते हैं. जैसे मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज बेलन के साथ करती हैं. आपके क्या तरीके हैं? Ma'am's raising her hand. Yes. So cute, you're wearing that cap. You're looking so cute, ma'am. Please give her the mic. I do it with belan. बेलन से? Otherwise, I cut it in the middle. हाँ. Cut in the middle. कटिंग वाला काम किया हुआ है हमने भी. किया हुआ- बेलन से तो होता ही है. उसके बाद कट करती हूँ. सर आप एक माइक वहीं रख लो. आपके बहुत गोल्डन कमेंट्स आ रहे हैं. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, yes. You were going to say the same thing? Yes. Would you like to share? टूथपेस्ट खत्म होते होते क्या क्या तरीके हैं बचाने के? एक्चुअली टूथपेस्ट का ऐसा है ना बाकी कुछ चीज़ों के लिए इंसान इतनी कंजूसी नहीं करता. लेकिन टूथपेस्ट को छोड़ता ही नहीं है. और वो बाथरूम में पता चलता है आप में स्ट्रेंथ कितनी है. उसको दबाते 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 लास्ट चिपक करके आएगा. तब जाके हाँ कुछ सर वो टूथपेस्ट ना ब्लेड बन जाती है एकदम. Okay, the next question जाने से पहले the prize goes to her, is it? Ma'am, yes, Yes. please. Could you please hand over prize to her? And also हमारा जो पिछला सवाल था होटल स्टेज का, उसका प्राइस दे दिया. We have the next question. We have the next question. हम जब छोटे थे तो शगन मिलता था हम सबको. और जब भी शगन के लिए कुछ कुछ करना पड़ता था तो what क्या क्या किया हुआ है शगन पाने के लिए? I Sir, add on to that. Who's saying? हाँ सर. शगुन तो मिलता है बट शगुन अगर नहीं मिलता है
तो वो एक अंदर से एक अलग लालच आती है ना कि यार भाई को मिला हमको नहीं मिला, तो सबसे बेस्ट होता है उनके सामने बस ऐसे जाके देखते रहो। वो तो सबको बांट रहे हैं ना, हमको नहीं मिला, बस उनको देखते रहो, गारंटी आपको जरूर मिलेगा। हम जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाता था ना पंजाब, तो वहाँ पे सारे मेरे रिश्तेदार वही हैं, मासियाँ मामियाँ, तो उनका तो मतलब वो पंजाबियों में शगन देना वो एक अलग वॉर है। वो जो लड़ते हैं सारे, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 ले लो, ये वो जैसे आखिरी बार मिल रहे हैं। और बच्चे उसमें पिस जाते हैं क्योंकि मम्मी पापा को जताना है कि नहीं नहीं हमें तो नहीं चाहिए, और मासी को देना होता है थोड़ा दे थोड़ा दे दो। तो वो शगुन के पर पता है वो जो 10 रुपए भी होते थे ना, उसकी वैल्यू ही अलग होती थी। कि वो जो शगुन के 10 रुपए मिले ना कि यार तू चल मिठाई खा लेना, तू ये खा लेना, फिर उसकी टेनिस बॉल लेके क्रिकेट खेलो या कुछ, वो शगुन के पैसों की वैल्यू ही कुछ और होती थी। आज भी याद रहते हैं। मेरे साथ शगुन वाला नहीं, बड़े किस्सा हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ। तो मैं छोटा था, छोटा तो पंढरपुर गया था मेरे दादी और बाबा के साथ। पंढरपुर, हाँ। और पंढरपुर में एक जगह है जहाँ पे आप नीचे गरीब लोग खड़े रहते हैं और आप ऊपर से उनको दान करते हो, पैसे डालते हो। तो मेरे बाबा ने मुझे इतनी ऐसी चिल्लर दी, मैं भी परेशान कि एक गरीब दूसरे गरीब को क्या ही दान देगा। तो बट दी थी, और मैंने शॉर्ट्स हाफ चड्डी पहनी थी स्कूल वाली खाकी, मैंने उसमें अंदर डाल दिए। मैंने 1-2 कॉइन डाल दिए, मैंने कहा इनको देके क्या फायदा, मैं भी तो गरीब हूँ, तो मैंने रख दिए। पंढरपुर की यात्रा खत्म हुई, हम एसटी में पंढरपुर से मुंबई आए। अच्छा, मुझे मोशन सिकनेस था, मतलब एसटी में मैं तो इतनी उल्टियाँ करता था कि मेरे बाजू में कोई बैठता नहीं था। तो फिर भी इतनी उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन मेरा हाथ वो चिल्लर के ऊपर से नहीं गया, मतलब कहीं गिर ना जाए। एंड उन बिल्ली हम बॉम्बे आए, 8 बजे का टाइम था, शिवाजी पार्क के चौल में रहते थे। मैं घर में अंदर घुसा ही नहीं, पहले दुकान के ऊपर चॉकलेट लेने को, और वहाँ पे चॉकलेट ये दो गोली, और पैसे निकाले, बोला अरे बंद हो गए। तो वो 1 पैसे 2 पैसे थे जो बंद हो चुके थे। पापा भी स्मार्ट थे, जो मुझे दान करने के लिए दिए थे, जो मैं संभाल के लेके आया था, जो मैं परेशान भी था कि मेरे बाबा ने इतने पैसे मुझे कैसे दिए, और तब जाके पता चला ये पैसे ही बंद हो चुके हैं। मैं और 1-2 दुकानों पे गया, किसी ने हड़काया लिटरली, बंद हो चुका है, हट जा। और समझ में नहीं आ रहा था फिर वो पैसे घर पे दिखाऊं, कहीं फेंक दूं, क्या करूं, तो ऐसे। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और हमारे इस यस मैम, कैन यू प्लीज पास द माइक टू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू डीनू सर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, लेकिन ये गेम के लिए नहीं है। मैं किसी भी अगर मैरिज में जाती हूँ तो मेरा ध्यान रहता है कि कहाँ कौन कौन जूठा फेंक रहा है। मैं उनको जाकर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे थैली में अगर ये भर के दे दें। और आप कभी भी जहाँ शादी वादी की जगह रहती है, वहाँ जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको भगाया जाता है कि इधर से जाओ जाओ जाओ। तो अगर आप बाहर जाकर वो चीज खिलाएं तो आपको इतना सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि वो लोग बहुत प्यार से खाते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। बोनस प्राइज प्राइज के लिए नहीं, ये तो नो बट इट्स। पर ये जो आखिरी सवाल था उसका, कैन वी हैंड ओवर द प्राइजेस? ओके, इस पिक्चर के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि सब परिवार सब जाकर इस पिक्चर को देख रहे हैं। प्लीज़ शेयर अ मेमोरी और अ स्पेशल मोमेंट जो आपने सब परिवार बताई हो। आपसे भी जानना चाहेंगे और मीडिया मेंबर्स आप में से भी जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं बताऊंगा एक कंजूसी का किस्सा। तो उस समय होता क्या था कि ब्रांडेड शूज लेने की तो हालत नहीं थी, तो फर्स्ट कॉपी आती थी रिबॉक और नाइकी की। और अगर आप में से सबको पता होगा, मुझे पता है, चोर बाजार में सुबह 4 बजे बाजार लगता है ना, अंधेरे में जाके 1.5 गली, करेक्ट। तो दादर से ट्रेन पकड़ के, अरे लव यू, हाँ हाँ हाँ, तभी तो फिल्में कनेक्ट हो रही है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या बनाऊंगा। तो मैं गया सर, सुबह 4-4:30 बजे की पहली ट्रेन होती है दादर से। मैं गया वहां पे, तो सुबह यहाँ पे इतने बड़े बड़े ढेले होते हैं ना शूज के, आपको निकालने होते हैं पसंद। पहली बात तो ऐसे सामने देख के नाइकी रिबॉक मैंने 2 निकाले, पहन के देखे, टकाटक बहुत सस्ते में, बैग में डाल के घर पे लेके आया। ऐसा लगा कि जन्नत हो गई आज तो।
घर पे आप पता चला एक रिबॉक का था, एक नाइकी का था। अभी वो लोग वापस लेते नहीं, लेते क्या खड़ा नहीं करते, तो फिर पहन ही नहीं पाया वो। क्या बात। Fantastic. Would you like to share any परिवार moment जो हम एक्चुअली मुझे जो याद आ रहा है वो था, आई थिंक मैं स्कूल में था या कुछ था, तो पहली बार एज अ फैमिली आउटिंग ना, हमारे 2-3 ही जॉइंट्स थे जहां हम डिनर करने जाएंगे या कुछ ना, और जहाँ पे हम रहते थे उसके आसपास ही थे ये अंकल किचन टाइप, और वहाँ पे पहली बार ये डिसाइड हुआ कि आज ना 5 स्टार होटल जाएंगे। तो हम तो बच्चे थे, हमें पता नहीं था, बट वो जो पहला एक्सपीरियंस था ना 5 स्टार होटल का, और मम्मी पापा बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ, मतलब मुझे मेरी मॉम का रिएक्शन ज्यादा याद है, दाल इतने की है, सब्जी इतने की है, तो और वो ना पूल साइड था रेस्टोरेंट, तो उनको लग रहा था कि सिर्फ ये पूल की वजह से पैसा लगा रहे हो, उसका खाने का उतना पैसा नहीं है जितना ये जो एम्बियंस का पैसा है वगैरह। बट दैट वन मोमेंट ना, जो पहली बार 5 स्टार होटल में हमारी फैमिली ने साथ में डिनर किया था, वो दैट वाज वेरी रियली मेमोरेबल फॉर मी। मैंने 5 स्टार होटल में जूते खाए थे पानी ऑर्डर करने के लिए। मेरे डैड ने, तू पानी के पैसे देगा तू नया पैदा हुआ है अंग्रेज, 30 रुपए का पानी। Let's take one. Yes. Yes. सर कम ऑन, आ रहा है कुछ अच्छा। यस सर, थैंक यू सर। सपरिवार जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत कम हो गया अभी। मोबाइल है, आप आजू बाजू में बैठ के भी एक दूसरे, एक था दौर जहाँ हम सर्कस देखने सपरिवार जाते थे, तो सर्कस का दौर निकल गया है और अभी पता नहीं वो दौर फिर आएगा, लेकिन इट्स गुड दैट आप लोग उसको इंसिस्ट करें सपरिवार के साथ पिक्चर देखिए, तो शायद वो दोबारा आ जाए। Fantastic. That one thing we are really happy कि वो जो सहपरिवार का ना, और क्योंकि हमने कुछ थिएटर विजिट्स करने का मौका मिला मुझे और सारा को, वो देख के हमें इतनी खुशी हुई ना कि जेन्युइनली हमें ऑडियंस में परिवार दिख रहे थे पूरे के पूरे। बहुत दिनों बाद एक कि पूरी परिवार की आउटिंग हो रही है और वो आके एंजॉय कर रहे हैं। फ्रॉम 6 to 60 सारे थे वहाँ पे। वो आई थिंक लाइक आई सेड बिफोर, इट्स बियॉन्ड नंबर्स फॉर अस टू सी दैट ना, बिकॉज हम जब जो जर्म होता है फिल्म बनाने का, ऑफ कोर्स उसके कई सारे मैथमेटिक्स होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वी आर ओनली मेकिंग फॉर दैट जॉय कि यार लोग आए, वो देखें और वो खुशी लेके घर जाएं। दैट फॉर अस इज एंटरटेनिंग द ऑडियंस। तो वो जब हमें देखने को मिल रहा है ना, वो हमारी सबसे बड़ी कमाई है, टू सी परिवार कमिंग एंड वॉचिंग आवर फिल्म। In fact, I just like to add that it's not just, मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खुशी मिलती है जब हम देखते हैं कि सपरिवार आप लोग आ रहे हैं, हमारी फिल्म को प्यार दे रहे हैं। लेकिन जब मैं आई थी संडे को, यहीं इसी थिएटर में आई थी, और मैं अपने मॉम और भाई के साथ फिल्म देख रही थी, और मैं अभी लक्ष्मण सर को बोल रही थी दैट यू नो, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग सैडिस्टिक, वॉचिंग माई मदर एंड माई ब्रदर क्राई इन माई फिल्म, मतलब ऐसा लगा कि लक्ष्मण सर अच्छा वाला क्राई नहीं नो, फिल्म के दौरान, फिल्म के बाद नहीं। तो मतलब जेन्युइनली ऐसा लगा कि दिस इज व्हाई वी मेक फिल्म्स, टू सी पीपल दैट वी केयर अबाउट हैव एन इमोशनल एक्सपीरियंस। और लक्ष्मण सर की वजह से, विक्की की वजह से, मैंने अपने मॉम को और अपने भाई को एक साथ रुला दिया। और ऑनेस्टली मॉम इज अ बिट फिल्मी, मॉम हमेशा से फिल्मी रही हैं, फिल्मों में काम करती हैं एक्सेट्रा। इब्राहिम इज अ 22-year-old अर्बन यंग बॉय। अगर वो ये फिल्म देखकर रोया है ना, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब मैं जा के बोलती थी, दिस इज नॉट जस्ट अ मिडिल क्लास इंदौर स्टोरी, दिस इज अ भारतीय इंसान की कहानी जो हर कोई रिलेट कर लेगा। और जब मैंने अपनी मॉम और भाई को दोनों को करते देखा एट द सेम टाइम, तो वो सहपरिवार एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइज देना पड़ेगा लगता है। प्राइज फैंटास्टिक। हमारे पास ऑब्वियसली प्राइजेस हैं फॉर मीडिया मेंबर्स। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। प्लीज कैन वी हैंड ओवर द प्राइजेस ऑन दैट साइड एज वेल। वी डू हैव, अपने परिवार को दे दीजिएगा। फैंटास्टिक। वी आर नाउ गोइंग टू डू समथिंग फन विद द कास्ट। ओके, बिफोर वी ब्रेक फॉर द मीडिया Q&A, हमारे पास कुछ बलून्स हैं। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ यही बोले हमारे सारे लोगों को कि ज़रा हटके, ज़रा बच के सिनेमाज में देखिए, लेकिन आप ये बोलेंगे लेकिन आवाज़ कुछ और आएंगी बाहर, बिकॉज वी हैव दीज बलून्स कॉल्ड द हीलियम बलून्स वाली balloons है। अरे बाप रे। आई थिंक विकी शुड सिंग फिर और क्या चाहिए इंस्टेड ऑफ सेइंग। चलो लेट मी ट्राई। ओके, सो कैन वी गेट द बलून्स प्लीज?
And both of you all sing, huh? Chorus. मतलब अरिजीत के गाने को गाने की हिम्मत अगर करनी है तो ऐसे ही करनी चाहिए, है ना? At least then there's no मैं तो competition. अच्छा गाती हूँ. कैसे करना है? Okay, so बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है. So just take the gas in and then you know और mic पे जो भी बोलना है बोल सकते हो and let's see कि क्या create आता है. चलो. बस पूरा मत वसूल कर. 5, 6, 7, 8. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू ही रे तू ही रे तू ही रे नी रे तू ही रे. अभी समझ में आया अमृता मैम और इब्राहिम क्यों रो रहे थे. मैं गाना नहीं गा रही थी उस वक्त. Sorry अरिजीत, sorry. Dinu sir, Lakshman sir, would you like to try? Great. With that, media, the floor is now open for Q&A. मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी. We have mics in the audience. Yeah, hi. My May I question encourage is you to all? Dinesh ji. Hello, Dinesh ji. Hello. Hi. Immediately डाल दे. Dinesh ji. Yeah. हाँ जी. Firstly, congratulations for the success of this film. Thank you and very much. As well as you know, आप इतने सारे हटके hits दे रहे हो, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पर हो या theatrical releases हो, चोर निकल के भागा, भेड़िया हो, सास बहू और फ्लेमिंगो, and now जरा हटके जरा बचके, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? जरा हटके जरा बचके से सबसे ज्यादा खुशी होती है क्योंकि ये थिएटर में चली है. It's very personal. सारा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक के लिए कौन सी मिली है इस फिल्म को लेकर? कहीं पढ़ा था सारा अली खान इज बैक. आई डोंट नो व्हाई, वो सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि याद आ गई थी. बहुत ज़्यादा याद आ गई थी. और हाँ, मम्मी और भाई का रिएक्शन पर्सनल था, बट दिस वाज नॉट पर्सनल. I think Ibrahim's reaction. इब्राहिम तो द वे ही इज वॉकड आउट, इब्राहिम मेरे साथ ज्यादा चिपकता विपकता नहीं है. विकी ने मुझे भेजा एक्चुअली, कहीं मीडिया में हमारी वीडियो आ गई थी यार. एक फोटो आप लोगों ने ली थी इन दोनों और की. वो कितनी प्यारी फोटो थी यार. मतलब मेरे भाई के बॉडी लैंग्वेज में गर्व शायद मैंने बहुत समय बाद देखा है, वरना मुझे बड़ा अच्छा लगा था. दूर इब्राहिम दूर से बोलता अरे हीरोइन वहाँ पे उधर जा. Very adorable photo. Vicky, you are ruling over internet with your sexy moves, dance moves especially, you know, you're trending. And comments में आ रहा है कि which god did Katrina Kaif prayed to? ऐसे comments आ रहे हैं. You are the new चिकनी चमेला. इस डांस पर उनका कोई रिएक्शन आया? उन्होंने ये डांस देखा है, उनका क्या रिएक्शन था? अरे उन्होंने इनको कोरियोग्राफ किया. नहीं उन्होंने देखा है और उनको भी अच्छा लगा. लक्ष्मण जी, इधर आप जी सर, क्या आप एग्री करते हैं कि एक फिल्म के हिट होने में संगीत की बहुत बड़ी भूमिका? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा. हिंदी सिनेमा बगैर संगीत के कुछ है ही नहीं. मतलब जिस तरह की सिनेमा हम बनाते हैं विदाउट म्यूज़िक कुछ है नहीं उसमें. मतलब हमारी दुनिया का सिनेमा अलग है और हिंदुस्तान का सिनेमा सबसे अलग इसलिए है क्योंकि हमारा म्यूजिकल सिनेमा रहता है. तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंस है सर. इस फिल्म में बड़ा महत्व दिया आपने म्यूजिक को. जी अच्छी बात है. बिल्कुल. इनकी हर पिक्चर में म्यूजिक एक्चुअली अच्छा रहा. या Guys. Hi Vicky, hi Priyanka this side. Hi Priyanka. Many congratulations to you and the Thank whole you. team. Vicky, you know, you spoke about the whole skepticism which was before the film released, and even Lakshman spoke about it. But personally, as an actor, were you told in the last few months that do big films? You know, your last was on OTT, Govinda Naam Mera. You know, you've done Uri, the numbers that it has done. You know, abhi big films ka zamana aa gaya hai. So as actor, you know, push yourself for it so that you're positioned that way. Because, of course, this is now a slap to all the skepticism, and I think a lot of us also had that, I would definitely say. But for you as an actor, were you told that by people? I think we were going through a time where a lot of things were being told, depending on each film that came out.
कब कुछ चलती थी तो कहते थे नहीं ऐसा होना चाहिए, फिर कुछ दूसरी चलती थी फिर कहते नहीं ऐसा होना चाहिए। तो आई थिंक हर तरीके के ये बातचीत होती थी कि नहीं यार ऐसी कोई सिनेमा चूज करो या वैसा कुछ सिनेमा चूज करो, बट इवेंचुअली इतने कैलकुलेटिव माइंड से कभी होता नहीं है, वो दिल से ही कनेक्ट होता है। जैसे जरा हटके जरा बचके ऑल्सो was narrated to us at a time where it was not the most wisest decision कि अच्छा ये स्केल की फिल्म करो या ऐसी फिल्म करो, इसका सैचुरेशन आया है, ये वो बहुत सारा एक बहुत ना वो साइंटिफिक अप्रोच भी होता है। बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट्स आई थिंक यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, यू हैव टू गो बाय द कन्विक्शन ऑफ योर डायरेक्टर, द विजन ऑफ योर प्रोड्यूसर कि ये क्या कहानी कहना चाह रही है, और आप अपना काम फिर सच्चे दिल से कीजिए। तो ऑफ कोर्स टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑल दीज chatters have been going and they are still going on, and they will keep changing with every film that works and that doesn't work. But I think as an actor, when you end up choosing a film, it's a very very personal process as to how it affects you personally as an audience first. So yeah. Guys, it's Rishid here from Pink Villa, and congratulations on the success of Zara Hatke Zara Bachke. Thank you. Yeah, so before just beginning, before asking my question, I just wanted to appeal on behalf of the media that the event began a bit late, like I think around 2 hours late, and I would just appreciate if actors adhere to the timings they've given, because we really appreciate your work and we appreciate that you all are spreading so many smiles in everyone's. So for that I'll take full responsibility, because मेरी रात भर शूट थी जो अभी 1 घंटे पहले खत्म हुई है, तो वो बिना सोए आया हूँ, पर वो शूट की वजह से मैं लेट हो गया और उस वजह से everybody got late and you had to wait. But so sorry, it was only because of a shoot that couldn't get finished in the morning. No, absolutely. I just wanted to say on behalf of the media. And Thank now you. I'll just ask my question first. हाँ जी. So Lakshman sir, you have given 3. पहले डांट दो फिर सवाल पूछता हूँ. एक्चुअली हर एक फिल्म क्लोज रही है, मतलब काफ़ी करीब रही है। जब तक दूसरी की शुरुआत ना करो तब तक पहली क्लोज ही होती है, और जैसे दूसरी की शुरुआत हो जाती है वो क्लोज होने लगती है। तो अभी इस वक्त ज़रा हटके ज़रा बच के यस डेफिनेटली काफ़ी क्लोज है, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि वो कपिल मैं ही हूँ, क्योंकि जिस तरह की कंजूसी या जिस तरह का एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ दिखाया गया है उसमें, मतलब लोअर मिडिल क्लास की जो वैल्यूज़ है उसको जिस तरह से हमने समझा है फिल्म में, और जॉइंट फैमिली की जो वैल्यूज़ है वो जिस तरह से हमने समझा है, तो अभी इस वक्त काफ़ी करीब है, क्योंकि चल भी रही है, और नहीं चलती तो शायद थोड़ी दूर हो जाती नहीं, बट या इस वक्त काफ़ी करीब है। क्योंकि अच्छी बात क्या है ना, जो जिनके लिए फिल्म बनाई थी, जिस ऑडियंस के लिए, वो फिल्म को सर के ऊपर उठा ले रहे हैं। और कई लोगों ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया बहुत गंदे वर्ड्स में, कुछ मुझे समझ में नहीं आते थे, इंग्लिश भारी वर्ड्स में अपने दोस्तों को बोलता था तारीफ की है क्या, बोलते गाली दी है। तो समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को थोड़ा जू और बांद्रा से बाहर निकल के ना, करी रोड नाम का एक स्टेशन भी है ना, देवनार भी है, मानखुर्द भी है, चेंबूर भी है, वहां जाके देखो, यहाँ पे यही सिनेमा चलता है, लोग रोज जीते हैं। तो बिफोर राइटिंग सम बैड वर्ड्स अबाउट द फिल्म, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अपने जरा हिंदुस्तान घूमो, जो ऑडियंस है, जो जनता है, उनको समझो कि वो क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखो क्या हो गया, आप बोलते हो फिल्म को नहीं देखो, वो ज्यादा देख रहे। दैट मीन्स एज अ व्यूअर, एज अ क्रिटिक्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, but you're not understanding, you're just putting your own perspective and trying to spoil that film. That is not right, and you shouldn't do that, and that is the reason why we are going through all this, the Bollywood. क्योंकि जब साउथ की कोई फिल्म आती है, छोटे बजट की फिल्म, जिस हीरो को हम जानते भी नहीं, वहां पे वो सुपरस्टार होता है, हमारे लिए न्यू कमर होता है, वाह 5 स्टार 4 स्टार अच्छी फिल्में होती है। भाई हमको भी जरूरत है, we have to get our industry right. तो I think we should, मतलब हमें हमारी इंडस्ट्री को कभी कभी लगता है कि जो हालत है वो सिर्फ हमारी वजह से है, बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि किसी और की फिल्म चले। क्यों नहीं चले, मतलब मैं देख रहा था सारे वीडियोस, और वो 4-4 लोगों के ग्रुप बना बैठ के यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे, ये नहीं चलेगी, ये 2 लाख में 50 लाख में पैक है। भाई क्यों,
इसका मतलब आप रिव्यूज लिखते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी जनता क्या देखना चाहती है। दैट मीन्स आप में और आपकी जनता में, आपके ऑडियंस में बहुत डिस्टेंस है, वो गैप कम करो। मुझे लगता है काफी फायदेमंद होता सबके लिए। थैंक यू। मैंने अगर एक और बार उस गाने पे कर दिया ना, मैं इंटरनेट पे बैन हो जाऊंगा। बट हमारे लिए एक बार तो चलता है। वो मैं लाइव, वो हम बाद में बाहर कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि इंटरनेट पे क्या होता है, पहले आप ट्रेंड करते हो, फिर आप बहुत ट्रेंड करते हो, फिर बहुत ट्रेंड करते हो, और फिर गाली पड़ती है कि तू इतना क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये पका रहा है, अब नीचे आ जा। तो ना अब मैं वहाँ से हूँ कि अब ये नीचे खींचा जाऊंगा, तो अभी मैं सच में बैन हो जाऊंगा, मेरा अलग से बॉयकॉट चलेगा, उसके बॉयकॉट ऑब्सेस। तो ना तो आई प्रॉमिस यू आउटसाइड, आप, मैं पॉपकॉर्न हूँ आपको, मैं आपके लिए स्पेशली डांस करूँगा, है ना, पर यहाँ पे नहीं करते। सर मेरे लिए हर फिल्म की जर्नी बहुत अलग होती है, और ये मैंने ज़रा हटके ज़रा बचके से जाना है, बिकॉज इससे पहले ना मुझे कभी थर्सडे रात को नर्वसनेस नहीं होती थी। इससे पहले मुझे इस बार थी, और नर्वसनेस से ज़्यादा क्यूरियोसिटी बहुत थी कि कल क्या होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, कितने लोग आएंगे, अगर आएंगे तो उनको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, तो बहुत सारे सवाल थे। एंड आई रियली कुडंट स्लीप दैट थर्सडे नाइट, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। सो आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द फेज वी आर इन, जहाँ पे थिएट्रिकल का थोड़ा सा एक ये है कि लोग थिएटर में क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते हैं वाला जो सवाल चल रहा है, जिसका जवाब हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चक्कर में इस बार वैलिडेशन की बहुत भूख थी, वो लोगों से थी कि लोग आए देखें। अगर जब कुछ मिलिट्री फिल्म होती है जैसे उरी थी, तो मेरा सबसे ज़्यादा भूख वैलिडेशन ये थी कि आर्मी वाले कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज जब उनसे वैलिडेशन मिल गई कि हाँ यार यू डिड अ गुड जॉब, तो मुझे बहुत वो एक तसल्ली मिली थी। तो आई थिंक विद एवरी फिल्म देयर इज अ डिफरेंट दिस थिंग। ऑब्वियसली जो सच्चाई से आपको आपकी फैमिली बोल देती है कि इसमें ठीक था या इसमें नहीं था, वो तो एक अलग है ही, कि जब फैमिली बोल देती है कि हाँ यार इसमें ठीक था, आपको पता है कि सच में कहीं ना कहीं ये करेक्ट नोट हिट हो ही गया है, तो वो वैलिडेशन तो परमानेंट ही है जो आपको हमेशा चाहिए होती है, बिकॉज दे आर योर क्लोजेस्ट एंड योर हार्शेस्ट क्रिटिक। बट अदरवाइज फॉर मी पर्सनली इट डिफर्स इन एवरी फिल्म। ऑनेस्टली मेरे लिए हमेशा जनता की राय, जनता का प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहा है। तो आई थिंक अगर वैलिडेशन की बात हो तो विकी ने बहुत सही तरह से कहा कि ये जो थर्सडे था, मेरे लिए तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे चारों रात नींद आनी बहुत मुश्किल हो गई थी। एक तो दीनू सर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था भारत दर्शन का, और उसके बाद जो घंटे मिलते थे, मतलब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी। पर आई थिंक दैट अल्टीमेटली हम सब फिल्में जनता के लिए बनाते हैं, और उनका प्यार ही सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। संडे रात को जब विकी और मैं उस थिएटर के अंदर गए और हाउसफुल थिएटर देखा, हम लोगों ने परिवारों को साथ देखा, खुश देखा, हमें देखते हुए खुश देखा, आई थिंक दैट फॉर मी इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस।